बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास के लिए आज के जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग ENDURING इंड्यूरिंग फ्रीडम ENDURING इंड्यूरिंग फ्रीडम या 9/11 अटैक या ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 9/11 अटैक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज 9/11 अटैक, हाउ डिड यूएस रिएक्ट टू इट, या इस तरह आ सकता है व्हाई यूएस स्टार्टेड ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, या इस तरह आ सकता है व्हाट वाज ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, तो ये कोई भी क्वेश्चन हो तो आंसर यही है। 9/11 is considered the deadliest attack on humanity. Thousands were killed in USA and a pledge was made to fight against terrorism till it ends. A fight against terrorism under code name Operation Enduring Freedom was launched. On 11 September 2001, a group of 19 terrorists took control of 4 American commercial aircraft and dashed them into the important buildings in USA, including World Trade Center. The attack almost killed 3,000 people. This attack was considered the brutal attack on US since its formation. On USA. Brutal attack on USA since its formation. After this deadly attack, USA acted swiftly. The US President George W. Bush launched an operation under code name Operation Enduring Freedom to curb worldwide terrorism and crush terrorists. This operation was considered as a part of global war on terror. USA attacked Al-Qaeda in Afghanistan, which was supported by Afghan-led government of Taliban. Taliban was dethroned and new democratic regime led by Hamid Karzai was established. In short, 9/11 is considered very surprising and unusual to the contemporary world as a superpower USA was attacked. Okay. 9/11 बेसिकली 11 सितंबर है। बेसिकली क्या है? 11th सितंबर यूएसए में मंथ पहले लिखा जाता है और डेट बाद में लिखी जाती है। 2001 was described by US media as the day of terror. यूएस मीडिया ने इसको क्या डिस्क्राइब किया? डे ऑफ टेरर। इस दिन क्या हो गया? 19 हाईजैकर्स जिन्होंने कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हवाई जहाज़ों को क्या किया? हाईजैक किया। 19 hijackers from Arabian countries hijacked 4 US commercial aircrafts shortly after takeoff and dashed them into some important buildings in the USA. 2 planes crashed into the Twin Towers of the World Trade Center in New York. A third aircraft dashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, which is the headquarters of the US Defense Department. The fourth aircraft came down in a field in Pennsylvania, which was presumably bound for the US Congress. US Congress means US Parliament. The attack came to be known as 9/11 क्योंकि 9/11 डेट को हुए थे। अच्छा, the US responded by launching global war on terror, and as part of it, US launched Operation Enduring Freedom. The attack killed nearly 3,000 people. George W. Bush, the US president, had much a harder view of US interest and the means by which to advance them.
US started global war on terror, and as a part of this, US launched Operation Enduring Freedom on 7th October 2001 against all those suspects to be believed behind these attacks, mainly Al Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. अब तालिबान रजीम क्यों? बेसिकली ये अटैक अलकायदा के खाते में डाले कि अलकायदा ने किए, तो अलकायदा का जो हेड क्वार्टर और उसका जो हेड था वो तालिबान के ज़ेर कंट्रोल, तालिबान की हुकूमत में, तालिबान के मुल्क में, अफ़गानिस्तान में रह रहे थे. जब यूएसए ने तालिबान से कहा कि उसामा बिन लादेन और जितने भी अलकायदा के मेंबर्स हैं उनको हमारे हवाले कर दो, तो तालिबान ने कहा नहीं, हम इनकी खुद कार्रवाई करेंगे, आप सबूत मुहैया कर दो, हम इनके ख़िलाफ़ खुद क्या करेंगे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएंगे या किसी और मुल्क में चलाएंगे, आपको नहीं देंगे. तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमें दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे. तो बाद में यूएसए ने तालिबान यानी अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया. द तालिबान regime was easily dethroned. उसको बड़ी आसानी से वहाँ से हटाया गया. द US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of their own governments. अच्छा, यूएसए ने जहाँ जहाँ पर भी उसको लगा कि अलकायदा के मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनकी फोर्सेस जिस जिस मुल्क में थी वहाँ पर वो गए और वहाँ पर अलकायदा के मेंबर्स को क्या किया, अरेस्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड. और कई मरतबा ऐसा किया कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो होती थी उस मुल्क की, तो उनको भी नहीं पता चलता था कि किसने अरेस्ट किया और किसको अरेस्ट किया. अच्छा, तो जितने भी अलकायदा के मेंबर्स या उसके सपोर्टर्स यूएसए ने पकड़े, उनको ग्वांतानामो बे, यूएस नेवल बेस इन क्यूबा, वहाँ पर लाया गया, जहाँ पर जो प्रिजनर्स थे डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ देयर ओवन कंट्री और दैट ऑफ द लॉ ऑफ द यूएसए. तो उन्होंने वहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि वो यूएसए लॉ भी वहाँ अप्लाई नहीं होता था, उनकी अपने मुल्क का लॉ भी अपना अप्लाई नहीं होता था, इंटरनेशनल लॉ भी वहाँ पर अप्लाई नहीं होता था, इसलिए उनको वहाँ पर रखा गया. Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. यूएनओ के मेंबर्स को भी उन प्रिजनर से मिलने नहीं दिया. इस तरह से जो 9/11 अटैक हो गए जिसमें तकरीबन 3,000 लोग मारे गए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ख़त्म हो गया, तो उसके बदले में अमेरिका ने, यूएसए ने अफ़गानिस्तान में और बहुत सारे मुल्कों में लाखों लोगों को मारा और अरेस्ट किया. और यानी 2001 से 15, 16, 18 साल तक कई लोगों को अरेस्ट करके ग्वांतानामो बे में रखा. वहाँ पर उनको किसी को मारा, किसी को क्या, जितनी वो इज़ाएँ सज़ा दे सकते थे दिए, लेकिन उन पर किसी पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं. और बहुत से लोग इस 9/11 अटैक को ये कहते हैं कि ये अलकायदा ने किया ही नहीं था, ये यूएसए का अपना ही प्लान था, या कोई कहते हैं कि ये इसराइल की एजेंसी मोसाद जो है उसका प्लान था. बहरहाल क्या था क्या नहीं था, इसकी जो फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आए. अलबत्ता जनरली यही कंसीडर किया जाता है, यही अलकायदा के ही खाते में ये डाला जाता है कि अलकायदा ने ये अटैक किया, और जिसमें 3,000 तकरीबन लोग मारे गए और 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ख़त्म किए गए. और इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और वहाँ पर तालिबान हुकूमत को ख़त्म किया. और वहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफ़गानियों को मारा, और तालिबान इसको अलकायदा वालों को मारा, अलकायदा के मेंबर्स को पकड़ा, और बाद में उसामा बिन लादेन को भी यूएसए ने ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से पकड़कर उसको भी मार दिया. तो इस तरह से यूएसए ने इसका बहुत ही ख़तरनाक नोटिस लिया, और इसके बदले में क्या किया, यूएसए ने बहुत ही इसका करारा जवाब दिया,
जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग मारे गए और वहाँ पर तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करके यूएसए ने अपनी मर्ज़ी की करज़ई की हुकूमत बनाई। लेकिन अब इस वक्त यानी 2021 में यूएस प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया है कि 9/11 तक हमारी तमाम फ़ौज जो है अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी, और जबकि वहाँ पर यूएसए मिलिट्रीली यानी मिलिट्री के ज़ोर पर, फोर्स के ज़ोर पर वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार उसने तालिबान के सामने घुटने टेके और अपने आप को बचाकर वहाँ निकलने की कोशिश की और तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए और तालिबान को अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में एक हिस्सेदार बनाया, और जिसके लिए अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ अभी कामयाब होने से पहले ही यूएसए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और उसने ऐलान कर दिया है कि 9/11 डेट को यानी 2021 20 साल पूरे, 9/11 2001 में अटैक हुए और 9/11 2021 को अफ़गानिस्तान से यूएसए की पूरी और नेटो फोर्सेस वहाँ से निकल जाएंगी। और नेचुरली अभी भी जो अफ़गानिस्तान है वो ज़्यादातर तालिबान के ही कब्ज़े में है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मेन एरियाज़ में है, बाकी जितना भी जो रूरल एरिया है वहाँ पर तालिबान की हुकूमत चल रही है।